सो इम्पोर्टेंस क्या है सब्जेक्ट की, लाइफ साइंस की, और जो हमारे स्कूल में करिकुलम में इसकी क्या महत्वता है, इम्पोर्टेंस क्या है। Science has been given due place in our school education program by being made a compulsory subject. So science को जो है हमारे 10th तक तो एक compulsory subject बनाया ही गया है. More and more emphasis is now being paid over the scientific and the technical education के ऊपर अब ज़्यादा जोर दिया जाता है. By doing so, in fact, a right step has been taken to push our country forward and to enable us to compete with our other progressive nations. So इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री जो है आगे बढ़ेगी, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो compete करने के योग्य होंगी. It has necessitated to lay due emphasis on the teaching of science right from the primary stage. So science जो है आपको primary stage से ही पढ़ानी start कर दी जाती है बच्चों को. Realizing such need, कोठारी कमीशन जो है has very rightly remarked in their recommendation as follows. Science and the mathematics should be taught on a compulsory basis to all the pupils as a part of a general education during the first 10 years of the schooling. Yes, so 10th तक जो है आपका साइंस और मैथ जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ता है वो स्टूडेंट्स को. The question here may arise why the subject science incorporating life science has been given so much weightage. So life science को हम क्यों वेटेज दे रहे हैं इतनी, as to be taught compulsorily during the 10 years of the one's school life? The answer may be satisfactorily discovered in various uses, applications and advantages. So अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ साइंस की हमारे 10th तक के बच्चों को पढ़ाने में, क्यों पढ़ा रहे हैं हम ये बच्चों को. सो आप ये इंपॉर्टेंस देखिए. सो फर्स्ट है हमारा यूटिलिटेरियन वैल्यू ऑफ द डे टू डे यूज. मॉडर्न एज जो है हमारी साइंस एज है. We need a network of the scientific gadgets based on the latest scientific inventions all around us. There was a time in olden age when we used to burn an earthenware oil lamp for light. But today we have electric bulbs, tube lights, illuminating as bright as sun. So पहले के जमाने में हम क्या करते थे, दिए जलाते थे. बट अभी क्या है, हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स चलाते हैं. और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं ये किसकी देन है, साइंस की. ओल्डन वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, घोड़े थे, हॉर्सेस एंड कैमल्स हैव गिवन वेज. अभी क्या है, हम क्या करते हैं, किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ट्रेन्स के थ्रू, कार्स के थ्रू, एरोप्लेन्स के थ्रू. We used to entertain ourselves by listening to the stories from our grandparents. But now we have newspapers, radios, televisions, cinemas in their places. So अब हमारे पास क्या है, इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गई है. On looking at the moon, we used to wonder what that old woman is doing with that spinning wheel. Today, man has reached the moon, stepped on it, and is busy in exploring it for further details. So आज जो है हम लोग जो है मून पर भी पहुंच गए हैं, चांद पर. There have been a miracles changes in the ways and the methods of doing our work and also in our way of living. हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे रहने का तरीका सब बदल गया है. We have devised our labor saving gadgets and the machines. They have made all our complicated work not only easy but also these are done so much faster. इन टेक्नोलॉजीज ने हमारे काम को इजी ही नहीं बल्कि जल्दी फास्ट करना भी बना दिया है. हम फास्ट भी करते हैं कामों को. साइंस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर वे ऑफ लिविंग. सो हमारे जो रहने का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, बहुत चेंज आया है. नाउ आवर लिव्स डिपेंड ऑन द साइंटिफिकली इन्वेंटेड गैजेट्स के ऊपर ही डिपेंडेड है. सो मच दैट वी कैन नॉट do without them. It's now imperative for everyone not only to understand science but to master it from all angles. So इसीलिए अब हम चाहते हैं कि हम साइंस को सभी ब्रांचेस से जो है इसको अपनी ताकत बना ले साइंस को.
Herbert Spencer has rightly said, the knowledge gained through science is much more useful in guiding our lifestyle than gaining through other sources. So क्या बोला है हर्बर्ट स्पेंसर ने? The knowledge gained through science is much more useful in our guiding our lifestyle than gaining through other sources. Yes. So साइंस से हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, ठीक है। सो इसीलिए हमने कहा है कि हमें साइंस के जो डिफरेंट डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें सिंगल सिंगल पढ़ना चाहिए, उनको डीपली पढ़ना चाहिए। So next is the intellectual value. The study of the science provide us the opportunity of developing the mental faculties of reasoning, imagination, memory, observation, concentration, analysis, originality and the systematic of thinking. अब साइंस से ना हमारा तर्क करने का, हमारी इमेजिनेशन, हमारी मेमोरी, हम कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन, हमारे सोचने का तरीका, वो हमें जो है डेवलप हुआ है हमारा। Science give us the insight which enable us to search the truth and the reality of a nature around us. We are able to do useful work with the help of the wisdom acquired through science. Science does not permit us to accept anything which we cannot prove by actual observation, reasoning and experimentation. So science जो है हमें कोई भी ऐसी चीज एक्सेप्ट करने को नहीं बोलती है जिन चीजों को हम साइंटिफिकली वे में प्रूव नहीं कर सकते। तो साइंस कहती है कि जिन चीजों को हम साइंटिफिक वे से प्रूव कर पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उन्हीं चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। द क्वेरीज लाइक व्हाई, हाउ, all the problems and the phenomena can be satisfactorily answered only by the wisdom of science. So जैसे कि एक कोई छोटा बच्चा है, वो छोटी सी उम्र में जब वो सूरज की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में सवाल है कि वाई सन के पास इतनी रोशनी कैसे है, और क्यों इतना सूरज गर्म है। उसके जो ये क्वेश्चंस है ना, वाई, हाउ, ये सारी साइंस ने ही डेवलप किए हैं। ये एक साइंस का ही एक वो है जिसको हम साइंस के थ्रू ही जो है अपने इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसीलिए जो है बच्चों को ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो डीपली पढ़ाना चाहिए। All problems can be solved by a mature scientist with a sharp intelligence and a wisdom. Indisciplinary value. Science develops our personalities as a whole. It inculcates spirit of inquiry, seriousness, and a systematic thinking. It brings out a total transformation of one's viewpoint and makes thought process more organized. Transformation of one's viewpoint and makes thought process more organized. Science makes us think seriously and helps to observe the real nature of the problem. It helps us to judge all the good and the bad points together with the gain and loss likely to be occurred in the plan of action contemplated. साइंस जो है हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारे अंदर एक सीरियसनेस को, एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। साइंस हमें कुछ चीज़ों में सीरियस सोचने को मतलब मजबूर कर देती है। हमें उसके गुड पॉइंट्स, उसके बैड पॉइंट्स, हम सब उसके जो उससे हमें क्या गेन होगा, उससे क्या हमें लॉस होगा, एवरीथिंग, एवरी गुड पॉइंट एट द बैड पॉइंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। Science also checks one to take a hasty action promoted by one's sentiments and influenced by the biased opinions of others, which are against the principles of science. Science is the okay. So मैंने ना यहाँ पे जो important lines हैं वो highlight भी कर दी हैं, because जो ऐसी लाइन्स होती हैं हम उनको याद नहीं कर पाएंगे और हमें उनको एग्जाम में जाकर हमें याद ही नहीं आएंगी, तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है और साथ के साथ भी हाईलाइट करती रहती हूँ। एंड
आप बस उसी को अच्छे से पढ़ना आपके एग्जाम के लिए। Science is the only subject which promote interest in the study, concentration and habits of hard and the systematic work. So साइंस क्या करता है, हमारा इंटरेस्ट जो है बढ़ाता है और हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। It also inculcates the habits of viewing a problem impartially with an alert mind. So हम जो है किसी भी प्रॉब्लम को इसमें बहुत ही अलर्ट माइंड के साथ में देखते हैं। This helps us to lead one's daily life successfully in a well organized and a systematic way. Okay, so next point is the cultural value. Before we discuss the cultural value of a science, let us try to understand what is a culture. According to the great Indian poet Dinkar, culture is a way of life, yes, which has been handed over to the society from one generation to the another in the form of accumulated customs, habits and a mode of living. So दिनकर जी जो हमारे पोएट हैं ये एक कल्चर को डिफाइन करते हैं कि कल्चर क्या है। कल्चर हमारा जो दिन भर में रहन सहन का वे है। कोई इंसान जो है अपने काम को कैसे करता है, हम कैसे, जैसे शादियां मान लो है ना, सभी के कल्चर अलग अलग हैं, सभी का वे अलग अलग है। सो वही है जो हम जो कल्चर क्या है, हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करते हैं, ठीक है, हैंडेड ओवर करते हैं, चाहे वो हमारी कस्टम्स हो, चाहे हैबिट्स हो एंड द मोड ऑफ लिविंग हो। अब जैसे कई कल्चर में होता है कि जैसे हिंदू कल्चर में ज़्यादा होता है कि मंगलवार को सिर नहीं धोना, वीरवार को सिर नहीं धोना, है ना। सो ये कुछ हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं हमारी, हमारा मोड ऑफ लिविंग है। सो इसी को हम कल्चर बोलते हैं। द मोड एंड द स्टाइल ऑफ लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। सो हमारे जो रहने का तरीका है वो एक सोसाइटी से और दूसरी सोसाइटी से अलग होता है, एंड देयरफॉर कल्चर इज ऑल्सो नॉट द सेम। According to the above definition of a culture, a way of life, food, customs, views, art and crafts, scientific interests, social and economic conditions all determine our standard of life. From time immemorial, man has been trying to maintain and preserve his way of life and standard through the use of the science. But somehow our way of life has been changing with the passage of time and the progress of science. This change in our lifestyle is due to the inventions of the science. The development of the culture is the history of science. सो जैसे जैसे जो है साइंस में डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे जो नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, वैसे वैसे ही क्या है कि जो हमारा कल्चर है इसमें भी बहुत चेंज आ गया है। We can judge the progress of the civilization, the culture of the nation by its the progress in the science. So जितना ज़्यादा कोई देश जो है साइंस में तरक्की करेगा, उतनी ज़्यादा ही उसके कल्चर में प्रोग्रेस होगा, उतनी ज़्यादा ही उसकी सिविलाइजेशन जो होगी प्रोग्रेस करेगी। Science not only develop our culture but also helps in preserving it. We are constantly adjusting and modifying our style of living according to the latest scientific inventions and the discoveries. The science develops culture of a society and a nation. So जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है, हमारा रहने सहने का ढंग भी जो है वो चेंज हो रहा है। साइंस जो है डेवलप कर रहा है हमारे कल्चर को, सोसाइटी के मोरल वैल्यूज। सम पीपल बिलीव दैट science is responsible for the lack of faith in God, but in reality the situation is reverse. No doubt that science does not permit blind faith. It also does not admit faith in idol worship nor follows many useless customs and the rituals. So जो साइंस है वो ये नहीं बोलती कि आप भगवान में भरोसा मत करो, या साइंस ये कहती है कि आप ब्लाइंड फेथ मत करो किसी चीज के ऊपर। इट ऑल्सो डज नॉट एडमिट दैट फॉलो इन फेथ इन द आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप का मतलब होता है कि जैसे मूर्ति पूजा हो गई या फिर किसी इसे इंसान की पूजा, जैसे जो कोई लोग जो पीपल होती हैं जो बन जाती हैं बाबा, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप वर्शिप मत करो। तो साइंस ये बोलती है। और ऐसे जो यूजलेस जो कस्टम्स हैं और द रिचुअल्स हैं
जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे पहले जो सती प्रथा होती थी, है ना? जो वाइफ थी उनको हस्बैंड के साथ में ही जला दिया जाता था। ऐसे जो यूजलेस कस्टम्स थे, या और भी अभी भी बहुत है ऐसे, ठीक है? तो ऐसे जो कल्चर के नाम पर जो ये रिचुअल्स हैं, इन पे आप भरोसा मत करो। ये बोलती है साइंस। द सर्च फॉर ट्रूथ और द रियलिटी ऑफ नेचर, द सर्च ऑफ द गॉड आर द आइडेंटिकल एम्स। आइडेंटिकल का मतलब सेम। किसी नेचर की जो हमारे की सच्चाई पता करना और एक भगवान को के ढूंढना, ये दोनों सेम ही चीजें हैं। दिस परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ नेचर और द स्टडी ऑफ द साइंस कैन नॉट बी कॉल्ड अ कॉन्ट्ररी टू रिलीजन एंड द फेथलेसनेस। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट। जो नॉलेज है हमारे नेचर की, ठीक है, उसको स्टडी करना। साइंस जो है अपनी मतलब बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे धरती बनी है, कैसे इस पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। साइंस ये हम साइंस में ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? साइंस का अपना एक वे है हमें बताने का कि ऐसे कैसे कैसे हुआ सब। साइंस जो है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, जो हमारे रिलीजन्स में बोला है क्या कि कैसे लाइफ आई है, ये सब कुछ। तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों का मतलब बस ये है, नॉलेज होना। Science and its pursuit not only include all the traits of the morality but also develop them. The qualities of the honesty of purpose, truth, justice, punctuality, determination, patience, self-control, self-respect, self-confidence, and the tolerance are automatically developed in a man if he follows the scientific method in his pursuit of knowledge. तो साइंस क्या कर रही है? हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज को डेवलप कर रही है। बस इतना ही याद रखो, ये सारी चीजें लिख देना एग्जाम में, ठीक है? द हैबिट ऑफ लॉफुलनेस, द फैकल्टी ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग एंड द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू आर सम अदर डिजायरेबल ट्रेट्स of character developed through the study of science. Yes. साइंस जो है हमें राइट और रॉन्ग के बीच में जो है डिफरेंस करना सिखाती है। किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो कुछ भी बोल रहा हो, हमें उसको रिस्पेक्ट करना सिखाती है। अब साइंस में बहुत कुछ होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कि ये एक्सपेरिमेंट पहले उसने बोला था, उसने इसे किया। सो बहुत, अगर हम अपनी अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे कि किसने क्या क्या थ्योरीज दी थी, तो हम सबके पॉइंट ऑफ व्यूज जो है लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसके ऊपर हंसेंगे, नहीं, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देंगे। और ये जो हमारे अंदर जो ट्रेड्स आते हैं, हमारी कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होती है, ये साइंस की वजह से ही होती है। The person busy in the pursuit of the truth and the reality imbibes in himself the qualities of the morality. Morality जो qualities है वो हम अपने अंदर परस्यूट कर लेते हैं। In science there is no place for the self-opinionated person and his sentiments or the idiosyncrasies. In science, every conclusion depends upon tests, and actually observations and not by cheat and the deceit. यही लाइन इम्पोर्टेंट है कि साइंस में जो है हर एक जो हमारा कंक्लूजन, जो हमारा रिजल्ट होता है, वो डिपेंड करता है हमारे टेस्ट में। तो साइंस में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। द आइडल ऑफ द ट्रूथ इज ब्यूटी इज ऑलवेज केप्ट इन व्यू। साइंस में हम चीज़ों को जो है ऐसे ही मतलब नहीं कह देते हैं कुछ भी, या ऐसे ही किसी चीज के ऊपर अगर किसी ने कोई चीज बोली है तो ऐसे ही हम उस पर भरोसा नहीं कर लेते हैं। हम अपनी आंखें खोलते हैं, हम उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और हमारे जो ट्रूथ आता है हम उस पर जो है भरोसा करते हैं। मोरालिटी में बस यही बोला है कि हमें अपनी जो है सब चीजों को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर किसी ने बोल दिया ऐसा है तो हमें उस पर ही भरोसा कर लेना चाहिए। तो साइंस हमें ये डिस्टिंक्शन करना बताती है। Aesthetic value. Science is a beauty, art, a source of entertainment, and a successful means of attaining physical comforts. Can you imagine the joy and the bliss of the Graham Bell, the inventor of the telephone? टेलीफोन जो है वो ग्राम बेल ने
डिस्कवर किया था। When his words were clearly heard on the other side by the Watson. The words were, Watson, come here, I want you. When Watson heard these words, he rushed to the room of Graham Bell, shouting, I have clearly heard your message. The joy and the satisfaction they got from their successful invention was similar to the joy got by the Archimedes from his discovery that he became totally obvious of his naked body while coming out of the public bath and ran on the streets shouting, Eureka, Eureka. सो साइंस जो है ना हमें बहुत खुशी देता है, जैसे कोई साइंटिस्ट है उसका कोई एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाए है ना, तो उसे कितनी खुशी होगी। सो ये यहाँ पर बस वही बात करी है। One gets extreme joy on one's successful discovery or invention. Even the study of the science is a source of great pleasure when one gets answers to his questions about the mysteries of the nature. Yes. So जब हमें किसी हमारी कोई मिस्ट्री होती है नेचर की, जब हमें उसका हमें आंसर मिल जाता है कि अच्छा ऐसे क्यों होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। A child even experiences a great joy when he gets answers to his queries like where do stars and the moon go away during the daytime? How does a chicken come out from an egg? How is the light produced in the room on pressing the switch? The child's joy takes the form of his interest in studying the science. So ये सारे questions जो हैं एक जो चाइल्ड के अंदर जो है एक खुशी और इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं कि हमें साइंस पढ़नी है, तभी हमें पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्यों होता है। Man derives boundless bliss on the revelation of the mysteries of nature and the mysteries of the great artist and his art. Science helps us to utilize our leisure purposely. सो हमारी फ्री टाइम को जो है हम अच्छे से जो है यूटिलाइज कर पाते हैं। इन एडिशन इट मेक्स अवर लिव्स हैप्पी by providing the scientific gadgets for our entertainment in our spare time like cinema, television, radio, newspapers are a gift of the modern science for our entertainment. Scientific hobbies can well be a source of joy in our leisure time. The useful and the gainful hobbies like gardening, photography, construction, scientific toys, manufacturing, toothpaste, varnish, inks, etc. are not only interesting but also financially useful. बहुत से जो है इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हो चुके हैं जिससे हमें हमारा एंटरटेनमेंट होता है और हमारा जो फ्री टाइम है उसमें हमें जॉय मिल पाता है। सो सोशल वैल्यू क्या है? साइंस इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू सोसाइटी. Science makes a man useful citizen. Science gives impetus to the progress of the society by its new thoughtful thoughts and the inventions. From the very beginning, science has helped a child to become a very useful citizen. Science gives impetus to the progress of the society by its new thoughts and the invention. From the very beginning, science helps a child to become a useful citizen. Science teaches us to be healthy by disposing the household waste at a proper place, by spitting at the right place, by preventing the spread of the epidemics, and also providing the first aid to the victims in case of the accidents. This type of the health education imbibes in children social consciousness and responsibility towards the society. From the very beginning of our civilization, science has played an important role in development. So social में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें। टुडे इफ देयर इज एनी डिजास्टर, कोई अगर डिजास्टर का मतलब कोई भूचाल वगैरह कुछ आ जाए in any part of the world like famine, earthquake, flood, epidemic, other countries considered it the social responsibility to send help in the form of a man, money and the material. So हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें वहां तक जो है उन लोगों तक हेल्प पहुंचाए। In fact, the world has become a small social group. Today's society stands on a pillars of a scientific techniques and a knowledge. All our social activities depend upon the science. It has given us eyes in the form of telescope, transport in the form of the fast electric trains. It has given us the wings in the form of the supersonic aeroplanes and the rockets. ये lines बहुत अच्छी हैं. In fact, science is essential for the progress of our society and the nation.
By studying science, we can make our social life happy and comfortable by leading a healthy life and gaining from public welfare activities based on the science. Vocational value. Science has opened a vast vistas of the vocations because scientific principles and inventions have become so universal and pervasive in our daily life. यहाँ से ये लाइन बोल रहा है science invention have become so universal. Scientific inventions have now helped widely all the traditional vocations nowadays like agriculture, poultry, farming and the dairy farming. Science has also revolutionized modern vocations like telephone, radio, and television broadcasting, banking through computerization and complicated machinery in the factories are other marvels of the science. Petroleum and the natural gas departments and the atomic energy commission are new fields of the professions. There is a lot scope of house building, road building, irrigation projects, engineering, medical science, research are the other modern vocations due to the advancement of the science. तो वोकेशन का मतलब होता है कैरियर। सो साइंस में बहुत सारे जो है इन्वेंशंस हुई हैं, बहुत सारे जो है मशीनरी डेवलप हुई हैं। सो इससे क्या है कि हमारे जो वोकेशन जो है हमारे करियर ऑप्शंस हैं बहुत सारे डेवलप हो गए हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे वो बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन का काम हो या फिर पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन उनमें काम हो। मतलब अ लॉट ऑफ स्कोप, एक घर बनाना, हाउस बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग, इरिगेशन करना, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, रिसर्च भी बहुत सारे जो है वोकेशंस जो है हमारे खुल गए हैं, जो साइंस ने हमें दी है। इनकी एडवांसमेंट जो हुई है साइंस में इसकी वजह से आए हैं। Scientific hobbies also prompt us to adopt the simple cottage industries like photography, manufacture of a soap, face cream, powder, polishes, varnishes, etc. In addition to undertaking repairs of the radio, television, and the machines. Psychological value. Study of science fulfills the psychological needs of man and helps in the evolution of the nature, curiosity, and other instincts like instincts of the collection, ego, and the self-expression. The instinct of the curiosity is responsible for the urge of the investigation, experimentation, and the research. In this way, the study of the science develops all the latent faculties of a child. So, साइंस की वजह से क्या है, हम लोग जो साइकोलॉजिकल जो है ना, ये बहुत डेवलप हुआ है। सो साइकोलॉजी की हेल्प से हम लोग, हमारा ये एक सब्जेक्ट भी है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। सो इससे ना हमें जो एक लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, एज अ टीचर, तो उनके अंदर अगर कोई छुपी हुई जो उनकी वो एक टैलेंट होगा या फिर कोई कमी होगी, हम उसको देख पाएंगे। तो साइंस जो है एक साइकोलॉजिकल वैल्यू जो है हमारे अंदर डेवलप करेगी, सो दैट कि हम बहुत सी चीज़ों को हम देख सकें, ठीक है, जो कि छुपी हुई हैं एक स्टूडेंट में, एक चाइल्ड में। Training in the scientific method. The methods used in solving the scientific problems are also helpful in solving other problems of the life. The following thought process are involved in the solving of scientific problems. The nature and the aim of the problem. Analysis of the problem. Testing the validity of the various solutions of the problem. Testing the results through the application in other problems. The result thus obtained is accepted as a scientific principle and the laws. The above thought process and methods are also needed in solving all problems of the daily life. First, we try to understand the nature of the problem. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कोई भी प्रॉब्लम है हमारी, हम उसका नेचर समझेंगे। देन आफ्टर थिंकिंग बहुत से हम उसके सॉल्यूशंस सोचेंगे, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे सॉल्यूशंस को, एंड फिर फाइनली जो हमारा एक सॉल्यूशन जो सही होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड उसकी वैलिडिटी को एंड करेक्टनेस को। सो अभी हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप टीचर हो और एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो क्लास में बिल्कुल मतलब चुप ही नहीं होता है, बार बार बात ही करता रहता है। सो आप पहले जो ऑब्जर्व करोगे उसे,
आप जो उसकी प्रॉब्लम है उसको आप ऑब्जर्व करोगे, अंडरस्टैंड करोगे कि क्या है इसकी प्रॉब्लम, ठीक है। देन आप फिर जो नए नए सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे कि अच्छा मैं इसको ना क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगी, मैं इसको क्लास में जो है हाथ ऊपर के खड़ा कर दूंगी। तो आप अलग अलग जो है वो सॉल्यूशंस अपनाओगे कि अच्छा, या फिर मैं इसको इससे प्यार से एक बार बात करूंगी कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बेटा। सो ऐसे कर कर ना हम उसके बाद देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है ना जिससे उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से ना वो अब वो बात नहीं कर रहा है, ऐसे इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहा है क्लास में और उसका ध्यान भी पढ़ाई की तरफ पे ज़्यादा है। तो फिर हम वो एक सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसी को हम लोग जो है उस बच्चे को करेक्ट करने में यूज़ करेंगे। सो ये होती है हमारी साइंटिफिक वे जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। Whether we consider from personal or the social point of view, the study of science has its special importance, चाहे वो हमारा पर्सनल हो चाहे वो सोशल हो, साइंस की तो अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है। The joy and the bliss are obtained from the successful investigation of scientific problems, but in addition, it also gives children self-confidence and insight for solving any life problem facing them. So अब साइंस में जो है हम बच्चों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करवाते हैं ना, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। So in brief, the study of science give us self-confidence and teaches us to lead a successful and a meaningful life. Up to so far, we have discussed in the above pages the importance of science, physical and the life science. दोनों को पढ़ा है हमने in our life and consequently hereof its importance in the school curriculum. However, in its separate entity, also life science or the bioscience may be found to our life and thereby in school curriculum. Let us say something about the importance of other study of life or science, life science or bioscience in our life. सो अभी तक जो हमने ये 10 पॉइंट्स पढ़े थे वो थे कि हमने जनरल साइंस के बारे में जो है ध्यान में रखकर पढ़ा था कि साइंस की जो है इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, चाहे वो आपका साइंस के बारे में पूछे या फिर आपके सब्जेक्ट लाइफ साइंस के बारे में पूछे या फिर जनरल साइंस लिख दें, ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर देना। और अगर ये इम्पोर्टेंस पूछे कि स्कूल करिकुलम में साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है, तब भी आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो साइंस क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। एक रिव्यू ले लेते हैं पूरी उसका। साइंस को जो अब हमारे स्कूल्स में कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। कोठारी कमीशन में भी ये बात की कि साइंस और मैथ को 10 साल तक जो है स्कूलिंग में बच्चों को 10 तक जो है वहाँ पर साइंस और मैथ कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। और फर्स्ट पॉइंट आता है कि यूटिलिटेरियन वैल्यू ऑफ डे टू डे यूज़। जो हमारी डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसमें जो साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। चाहे वो हमारे घर में जो लाइट मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, इन सब में जो हमारी जो है साइंस साइंस ही है। इन सब के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। उसको ट्रेडिशनल जो हम कैसे ट्रैवल करते थे, कैसे हमारे घर में लाइट आती थी, वो सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और अभी जो मॉडर्न वे में साइंस ने क्या-क्या डेवलप किया उसके बारे में पता होना चाहिए। तो साइंस जो है हमारी डेली लाइफ में डिपेंड करती है, इसलिए बच्चों को पढ़ानी चाहिए। एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, साइंस जो है हमारे जो बच्चे के अंदर भी कह सकते हैं हम, एक रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन करना एंड कंसंट्रेट कर पाना किसी चीज़ के ऊपर जो है वो डेवलप करती है, इसलिए साइंस जो है स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए। एंड डिसिप्लिनरी वैल्यू, साइंस जो है एक बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, उसके अंदर जो एक डिसिप्लिन जो है लेकर आएगी, उसके अंदर एक सीरियसनेस और जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप करेंगी, राइट को राइट कहना, रॉन्ग को रॉन्ग कहना, वो सब चीज़ों को उसको मतलब डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी। एंड कल्चरल वैल्यू, यस, कल्चरल वैल्यू हमारे बहुत से बच्चों के घर में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होंगे। उनको उन सब कल्चर्स को समझना और उनसे जो है और साइंस के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनको समझकर डिफरेंशिएट करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स और मोड ऑफ लिविंग को जो है डिफरेंशिएट करना, ये जो है एक बच्चे के अंदर आ जाएगा। मोरल वैल्यू जो है ये उनको ये भी बताएगी कि आपको आइडल वर्शिप नहीं करनी है, और जो साइंस क्या कहती है कि आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, एंड आपको हमेशा चीज़ों को टेस्ट करना है, फिर ऑब्जर्व करना है, तभी आपको उस चीज़ पर भरोसा करना है। एस्थेटिक वैल्यूज़ है कि इसके जो है आपको एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगा।
आप सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स जो है, इनसे आपका जो फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो पर्पसफुली। एंड जिस एक बच्चे के अंदर जो है एक अच्छा सिटीज़न जो है उसको बनाएगी साइंस। एंड उसको एक रिस्पॉन्सिबल बनाएगी इंसान, जो किसी भी डिज़ास्टर में उसको कैसे बिहेव करना है, ये उसको पता चलेगा। बहुत से उसके पास करियर ऑप्शंस जो है साइंस बिल्ड करती है। एंड साइकोलॉजिकल जो है वैल्यू, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, सबकी डेवलप होगी। एंड कैसे हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, ये भी हमें साइंस की जो है सिखाती है हमें। सो ये बहुत इम्पोर्टेंस है साइंस की। सो नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ साइंस। सो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।